Online students, can you hear me? Yes, sir. I'll start in 2 minutes. Meanwhile, open page number. We have done one sum on this part, right? This part, na? Question number 19. We have done one sum on this part. Now we are going to do one sum on this part. Okay? This part. Question number 21. Question number 21. What's the page number? Page number 143. Go through the question once. बुक ले लीजिए, इसमें बुक है ना इधर तो. हाँ, है नहीं है क्या बुक? अच्छा, एक भी नहीं है. एटलीस्ट फोन पे डाउनलोड करके लेके आ जाइए. फोन पे एटलीस्ट डाउनलोड करेगा ना, एटलीस्ट तो पेज में देख सकते हैं ना. तनुजा, रीड द क्वेश्चन. ओनली तनुजा इज. हाँ, पेज नंबर 143. ऑफलाइन में ओनली तनुजा इज रेगुलर. है, यू हैव टू कम डेली. हाँ तनुजा. हाँ, ओके. What is this 2,40,000? Sorry? Enter into a venture. हाँ, very good. Contract price or job price. You would say contract price. 2,40,000 is the amount they'll get after completing this joint venture. Okay, next. They provided the following information regarding the expenditure incurred by them. So there are two co-venturers. Who are they? Anil, Mukesh. Now Anil column में पढ़ो एक बार. Materials, cement, architect fee. मुकेश ने क्या खर्चा किया था? Materials, cement, wages, license fees, plant. ठीक है? So Mukesh has contributed all this part. Anil has contributed three items. Understood? हाँ. Next. सो ऊपर में जो भी है एक प्लांट बच गया. ठीक है, वो प्लांट को वैल्यू किया 10,000. मुकेश एग्री टू टेक इट एट दैट वैल्यू. ड्राइंग्स. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय हुम? अनिल. जो 2,40,000 है अनिल ने रिसीव किया. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, दिस वन, and Mukesh account, co-venturers account. Understanding? From this question you should understand this is second method. Understood na? Because there is no joint bank account here. Yes or no? They did not ask you to prepare joint bank account, so it does not fall under this category. So it comes under this category. Suppose if they ask you to prepare memorandum joint venture account, it comes under this category. So based on the question, you have to identify which method it is. Okay? हाँ.
Now, and joint venture account on Anil account in the books of Mukesh. Now let us see the entries. I mean, they asked ledger accounts, not entries. So draft the ledger accounts in the books of Anil. In one page in the books of Anil. In the second page in the books of Mukesh. Draft two accounts, two separate accounts. First account is joint venture account. In the books of Anil, I am talking about in the books of Anil. First account is joint venture account. Second account is Mukesh account. Draft the ledger account. Particulars, debit rupees, particulars, credit rupees. Similarly in Mukesh account also, particulars, rupees, particulars, rupees. Mukesh is nothing but the co-venturer. That's why here you are mentioning it as co-venturer's account. What is the first entry? What is the first transaction? First transaction 2,40,000. So what is the entry? Normally bank account debit to sales account, na? Huh? Now you have to write generally joint bank account. Here they did not ask you to draft the joint bank account. So leave this debit part. Joint bank account debit to joint venture account. Sales account is a nominal account. So instead of sales account, you should use joint venture account. So you are maintaining only two ledger accounts. One is joint venture, one is Mukesh account. Here by joint venture account में credit side देखो, credit side लिखो by bank account. First account जो joint venture account है, joint venture account, credit side by bank. How much? 2,40,000. This is the first posting. You are not drafting the bank account, so ignore this part. Next, Anil. Anil has spent some expenditure, na? Now we are mentioning in the books of Anil only. Okay? Joint venture account you have in both the books. Two books, na? So both books में by bank account लिख दो. ठीक है, इधर भी है same joint venture account. Joint venture account is almost the same. ठीक है. Next, second one expenditure by Anil. So एंट्री क्या होगा? क्या क्या आइटम से बोलो मुझे. 3 आइटम है ना अनिल का. मटीरियल्स, सीमेंट एंड आर्किटेक्ट फी ना. हाँ, तो मटीरियल्स, सीमेंट, आर्किटेक्ट फी, फी अकाउंट, 3 अकाउंट डेबिट होना चाहिए. अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इसका पॉकेट से पे कर रहे हैं ना, तो हम अनिल बुक्स में लिख रहे हैं पहले, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट. तो ये सब नॉमिनल अकाउंट है, इसके जगह में जॉइंट वेंचर अकाउंट ले लो. जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट होगा. समझ गया? जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये 3 नॉमिनल अकाउंट्स है, तो इसके जगह में जॉइंट वेंचर ले लीजिए. 3 का टोटल कितना है देखो. अनिल का जो एक्सपेंडिचर मैं बोल रहा हूँ 68,000 प्लस 13,000 प्लस 10,000 कितना 91,000. वेरी गुड. सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 91,000 टू जॉइंट बैंक अकाउंट 91,000. ठीक है.
जॉइंट वेंचर अकाउंट में अभी 2 जॉइंट बैंक या 2 बैंक 91,000 ले लीजिए इन द बुक्स ऑफ अनिल। नहीं, सेग्रीगेट कर लीजिए। 91 भी दे सकते हैं, लेकिन 91 कैसे दिखा देगा, प्लस भी कर सकते हैं नीचे 68 प्लस ऐसा 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 3 दिखा दीजिए। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं है तो 2 बैंक लिख के 68,000 प्लस 13,000 प्लस 10,000 दिखा दीजिए। दिखाना तो मैंडेटरी है। वो 91,000 कैसे आया था वो दिखाना पड़ेगा, नहीं है तो हाफ मार्क कट हो जाएगा, यू लूज हाफ मार्क। नाउ इन द बुक्स ऑफ मुकेश देखो 2 अनिल अकाउंट होगा, रेस्ट इज सेम। मटेरियल्स को सीमेंट आर्किटेक्ट फीस 2 अनिल अकाउंट, why anil account is credited? Because Anil is paying the amount, so you need to pay to Anil. Indirectly you're recording him as creditor for the time being. Till joint venture profit is finalized, you have to assume him as creditor. Understanding? To Anil account na? To Anil account. तो in the books of Mukesh, to Anil account कितना होगा? Same 91,000 होगा. I am telling simultaneously in both the books, huh? Understanding? पेन नहीं है था क्या? पेन मेरे पास बैग में है। ठीक है, सेकंड ट्रांजैक्शन, मुकेश एक्सपेंडिचर कुछ किया था, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर किया था उसके एंट्री बोलो मुझे, क्या क्या आइटम से पहले? मटेरियल्स अकाउंट, सीमेंट, नेक्स्ट वेजेस, नेक्स्ट लाइसेंस फीस, ठीक है। मटेरियल्स कितना था? 50,000। प्लांट भी है ना? हाँ, प्लांट भी है। टेल मी द अमाउंट्स वन बाय वन। सीमेंट कितना है? हाँ, ओके। वेजेस 27,000, लाइसेंस फीस 5,000, प्लान 20,000। टू, this is in the books of Mukesh, in the books of Anil first. So Mukesh is spending the amount. You have to write to Mukesh account. Understanding? Total, tell me the amount. 1,19,000. Very good. Hey. सर टू बैंक होगा शायद। नहीं, I am talking in the books of Anil. First, in the books of Anil. So expenditure is spent by Mukesh. So his bank balance is not going to reduce. You have to record Mukesh as creditor. Understood? यस सर। हाँ. So these are all nominal accounts. Instead of this, use joint venture account, because joint venture account is also nominal account. So now what will be the posting in the books of Anil? Joint venture account debit to Mukesh account. So in joint venture account to Mukesh, see 1,91,000 debit. Okay. This is in the books of Anil. Now coming to books of Mukesh. In the books of Mukesh, you have to write 2 bank account. Understanding?
टू बैंक 1,19,000, ठीक है। अंडरस्टूड। पहले एंट्री जो 91,000 है उसका अनिल अकाउंट करस्पॉन्डिंग, अनिल बुक्स में मुकेश अकाउंट है ना, मुकेश अकाउंट है कि नहीं, अनिल बुक्स में मुकेश अकाउंट करस्पॉन्डिंग मुकेश अकाउंट पे भी दे दीजिए। समझ गया था? कितना देगा? 1,19,000 करस्पॉन्डिंग उधर है। अभी इसका मुकेश बुक्स में अनिल के अकाउंट में 91,000 होगा। समझ गया? करस्पॉन्डिंग। अंडरस्टूड? And the last transaction is plant valued at 10,000. Mukesh agreed to take it that value. What will be the entry? Generally, what will be the entry? Mukesh, who is taking that plant? Mukesh, na? हाँ, Mukesh account debit to plant account. So instead of plant, use joint venture. Although this is an asset, you should use joint venture account to determine the profit or loss. Okay. Here you don't have a separate balance sheet, don't have separate trading, separate P&L. All these three items will go to joint venture account only. Understanding? So what will be the net entry? Mukesh account debit to joint venture account. Understanding? Joint venture में credit side देख लेना 10,000. Credit side डाल देना by Mukesh 10,000. In the books of Anil, joint venture account में credit side by Mukesh 10,000. Understood? By Mukesh 10,000 लिखो. In the books of Anil, Mukesh account में two joint venture 10,000, वो भी लिख देना. Now in the books of Mukesh, joint venture account में by plant. Okay. Understood? By plant. क्लियर? अनिल अकाउंट अभी मुकेश बुक्स में कुछ होगा क्या एंट्री? सिर्फ जॉइंट वेंचर अकाउंट में होगा. देखो मुकेश बुक्स में क्या कुछ कंफ्यूजन है क्या? मैं ड्राफ्ट कर दूं, दोबारा ड्राफ्ट कर दूं क्या? कुछ कंफ्यूजन होने से बोल देना. ड्राफ्ट कर दूं. बुक्स ऑफ किसका? अनिल ना. बुक्स ऑफ मुकेश. कंफ्यूजन हो रहा है ना, इसलिए मैं ड्राफ्ट कर देता हूं. पहला अकाउंट क्या था? जॉइंट वेंचर अकाउंट ना. सेम इसका भी जॉइंट वेंचर अकाउंट होगा, है कि नहीं? बुक्स ऑफ अनिल है. पहले टू बैंक अकाउंट. कितना खर्चा है? 91,000. समझ गया? 91,000 कैसे आ गया? 68 के. आई एम यूजिंग के मतलब थाउजेंड है, प्लस
13,000 प्लस 10,000, ठीक है। इधर क्या होगा, टू अनिल अकाउंट होगा, समझ गया ना, सेम 91,000, क्लियर। हाँ, ये भी जॉइंट वेंचर अकाउंट ही है ना, जॉइंट वेंचर तो दोनों लोग प्रॉफिट और लॉस अलग से डिसाइड कर रहा है, समझ गया। दोनों बुक्स में प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करना है, दोनों का अलग अलग अकाउंट्स है, समझ गया। क्योंकि क्योंकि इधर देखो, नो सेपरेट बुक्स और मेंटेन फॉर जॉइंट वेंचर, ये दो लोग मिलके सेपरेटली एक अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा है, वो लोग खुद मेंटेन कर रहा है, समझ गया मैं क्या बोला। जॉइंट बुक्स नहीं है जॉइंट वेंचर के लिए, इधर जॉइंट बुक्स है, इसलिए जॉइंट बैंक अकाउंट आया था, समझ गए। इसमें अलग से मेंटेन नहीं, अलग से जॉइंट का जॉइंट वेंचर के लिए अलग से मेंटेन नहीं कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके बुक्स में ही अलग अलग मेंटेन कर रहा है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, टू मुकेश अकाउंट, अभी जो मुकेश का एक्सपेंडिचर है बताओ, 1,19,000, इसमें क्या क्या आइटम्स है, 50K, 17K, 27K, 5K प्लस, आप लोग के यूज मत करना, ठीक है, आप लोग पूरा अमाउंट डाल दीजिए, इधर टू बैंक अकाउंट होगा, 1,19,000, इधर तक ठीक है। इधर बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कौन रिसीव कर रहा है, अनिल रिसीव कर रहा है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, तो इसलिए इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। मुकेश रिसीव नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या लिखेगा, बाई अनिल लिखेगा, 2,40,000, अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अभी प्लांट कौन लेके जा रहा है, मुकेश लेके जा रहा है, इसलिए बाई मुकेश अकाउंट 10,000, समझ गया। ये वाला तो ये मुकेश खुद लेके जा रहा है, इसलिए प्लांट अकाउंट ले लो, इसका बुक्स में एसेट बन जाएगा, इसलिए प्लांट अकाउंट को डेबिट कर रहा है, समझ गया। ये जो प्लांट है जॉइंट वेंचर बुक्स में नॉमिनल अकाउंट जैसे ट्रीट होगा, लेकिन जो प्लांट लेके जा रहा है उसके बुक्स में प्लांट का वैल्यू बढ़ जाएगा, समझ गया ना, खुद का भी प्लांट रहता है, इसलिए वो प्लांट बोल के लिखा है, क्लियर टिल नाउ। अभी बैलेंसिंग फिगर देखो जॉइंट वेंचर का, क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, 2,50,000, इधर कितना हुआ है, कितना हुआ है, 2,10,000 हुआ है क्या, बैलेंस कितना था, 40,000 इज द बैलेंस, 40,000 नीचे ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर B/F, ठीक है, ये हमेशा लिखना पड़ेगा। 2, अभी इसको क्या करेगा, प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कुछ दिया था क्या, शेयर, रेशियो नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट होने से कितना होगा, इक्वल होगा, तो 50-50 होगा, तो 2 मुकेश अकाउंट 50, 2 अनिल 50, तो कितना 20-20 होगा, समझ गया। ये जो अनिल का बुक्स में खुद का है ना, तो इसलिए P&L ले लीजिए, ये P&L में जाएगा 20,000, समझ गया। 2 मुकेश 2 P&L, इसके जगह में ये आएगा P&L, 40,000 का बैलेंस है। अभी इधर भी सेम होगा,
40,000, 20,000, 20,000, ठीक है। टू मुकेश, टू अनिल, सॉरी टू अनिल हो, क्योंकि ये मुकेश बुक्स है ना, टू पी एंड एल होगा। इसको 40,000 को हाफ ऑफ 1:1 में बांटना है, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, जॉइंट वेंचर प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ना? अभी इधर अनिल बुक्स में मुकेश अकाउंट भी देख लेना। अनिल बुक्स है ना, करस्पॉन्डिंग मुकेश अकाउंट में ड्राफ्ट कर रहा हूं, देखो मुकेश अकाउंट, मुकेश बुक्स में अनिल अकाउंट, ठीक है। इस एंट्री में नहीं था मुकेश कहीं पे भी, क्योंकि जॉइंट वेंचर टू बैंक हो रहा है। जॉइंट वेंचर टू मुकेश, तो मुकेश में बाई जॉइंट वेंचर है कि नहीं। इस ट्रांजैक्शन का एंट्री क्या होगा, जॉइंट वेंचर टू मुकेश, तो मुकेश अकाउंट में बाई जॉइंट वेंचर, मुकेश अकाउंट में बाई जॉइंट वेंचर कितना था, 1,19,000 ना। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इधर शेयर कितना आया था, जॉइंट वेंचर टू मुकेश 20,000, तो मुकेश अकाउंट में बाई जॉइंट वेंचर 20,000। अंडरस्टूड? हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, इसमें मुकेश अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट, मुकेश टू जॉइंट वेंचर, मैं लेजर पोस्टिंग से एंट्री कैसे फॉर्म कर रहा हूं देख लीजिए अच्छे से। अगर डेबिट साइड होगा तो पहले अकाउंट का नाम पढ़ना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिट होगा तो पहले ये अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, तब जॉइंट वेंचर अकाउंट पढ़ना पड़ेगा। समझ गया? एंट्री क्या होगा, मुकेश टू जॉइंट वेंचर, तो मुकेश अकाउंट में टू जॉइंट वेंचर कितना, 10,000। अंडरस्टूड? देख लेना बैलेंस क्या होगा। इधर बैलेंसिंग फिगर किस तरह आ रहा है देख लेना, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड कितना था, 1,39,000। बैलेंसिंग फिगर 1,29,000 टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। दिस इज क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इज नथिंग बट सम अमाउंट इज रिसीवेबल, यस और नो। रिसीवेबल नहीं, पेएबल है। रिसीवेबल है, पेएबल है, हाँ। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस पेएबल है कि नहीं। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस इज नथिंग बट क्लोजिंग क्रेडिटर्स। फॉर क्रेडिटर्स you need to pay. Why Anil has to pay to Mukesh? Because he has received the contract price. This is the main logic. Understood? हाँ, very good. Now similarly Anil account draft करो मुकेश बुक्स में। इधर देखो, जॉइंट वेंचर टू अनिल अकाउंट, जॉइंट वेंचर टू अनिल अकाउंट, इधर देखो जॉइंट वेंचर टू अनिल अकाउंट, अनिल अकाउंट में बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर कितना था, 90। वेरी गुड। जॉइंट वेंचर टू बैंक अकाउंट, इसमें अनिल अकाउंट नहीं है, छोड़ दीजिए। जॉइंट वेंचर टू अनिल अकाउंट 20,000, अनिल अकाउंट में बाई 20,000, बाई जॉइंट वेंचर ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, इधर भी लिख देना ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000, ठीक है। नेक्स्ट,
डेबिट हो गया क्रेडिट. अनिल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर. टू जॉइंट वेंचर कितना होगा? 2,40,000. टू जॉइंट वेंचर 2,40,000. समझ गया? नेक्स्ट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर. नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं होगा कुछ भी. अभी इधर बैलेंस कर लेना. इधर डेबिट ज्यादा है, 2,40,000, 2,40,000. बैलेंसिंग फिगर कितना होगा? ये तो टाइपिंग प्रिंटिंग इधर इश्यू हो रहा है. 1,29,000 ना. क्लोजिंग डेबिट बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन. क्या था ये? बाय बैलेंस कैरी डाउन. क्लोजिंग डेबिट बैलेंस nothing but closing debtors. Closing debtors is nothing but receivable. So this much amount is receivable from Anil. Understood? You can understand both these amounts should match ideally. Yes? This is the second model in joint venture. This is the second model in accounting for joint venture. Any doubts, online students? No, sir. हाँ. Clear? Now we will see the third part. What is the third part? When each co-venturer keeps a record of own transactions only. The co-venturer is not bothered about the transactions of other co-venturer. He will record his own transactions only. Understood? Understood? Come to page number 146. Read that B part. When each co-venturer keeps record of its own transactions. Okay, this is called memorandum method. Sir, why this is called memorandum method? Because here double entry is not followed. Understanding? Here double entry is not followed. That's why it is called memorandum account. You will understand. Read, go on. We are reading page number 146. Huh? Page number 146. हाँ, स्क्रीन में प्रॉब्लम है, इधर लिख देना. Page number 146. हाँ, next. In No, joint venture with co-venturer account. Here, joint venture with co-venturer account. Understanding? हाँ. Sir, only the transactions done by him are recorded. Understanding? हाँ, next. Co-venturer. What will the co-venturer do? He will send a periodical statement to the other co-venturer. Okay? So based on that, what he is going to do?
हाँ, ये वाला। पहले क्या था, जॉइंट वेंचर, ये लोग क्या करेगा, उसका बुक्स में ये अकाउंट मेंटेन करेगा, इसमें क्या करेगा, सिर्फ ओन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। इधर तक ठीक है। लेकिन प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए टोटल एक्सपेंसेस चाहिए होगा, खुद के एक्सपेंसेस लिखने से नहीं होगा, पूरा एक्सपेंसेस चाहिए होगा। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कब बनेगा, जो दूसरा कोवेंचरर से उसका ट्रांजैक्शंस आएगा, तब इसका ट्रांजैक्शंस उसका ट्रांजैक्शंस मिला के मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में डाल देगा, तब इधर प्रॉफिट और लॉस बन जाएगा। समझ गया? सोच लीजिए, इधर इसका एक्सपेंडिचर हुआ है 10, समझ गया? ये तो नहीं आ रहा है। 10 हो गया इधर, इधर 10 प्लस 20 हो गया। तो बाकी जो 20 है दूसरा कोवेंचरर का होगा ना, ऐसा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? इधर सिर्फ ओन ट्रांजैक्शन लिखेगा, इधर जो मेरा ट्रांजैक्शन है और जो दूसरा कोवेंचरर का आएगा, दोनों मिला के इसमें रिकॉर्ड करेगा, इसमें प्रॉफिट और लॉस आएगा। अंडरस्टूड? दिस इज द टारगेट। ओके, हाँ, let us see one sum, then you will understand better. Come to question number 23, this part, question number 23, page number 148. Understood? Question number 23, page number 148. What are the different accounts maintained under this third category? First, you have to pronounce this one, joint venture with co-venture account, where you record only own transactions, and then you have to prepare memorandum joint venture account. Memorandum, that word is different here. Okay, here you, in these two methods you don't find this word memorandum. Memorandum joint venture account, where you find out the profit or loss. Understood? Huh. Read the sum. Neelav, are you there? Yes, sir. Yeah, read the question. Question number 23. Yes, sir. Hari and Om agreed for purchasing and selling furniture in a joint venture. Their What is profit their share business? What is their business? they are purchasing and selling furniture in a joint venture. Huh. Selling furniture. Indirectly, business is selling furniture. Huh. Their profit sharing ratio being 3:2 respectively. In the earlier sum, still now they did not mention the ratio, but here they are mentioning the ratio also. Okay, so what is the profit sharing part of Hari? 3/5. Okay, 3/5. 5 कैसे आया सर? 3/3 + 2. ओम का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में? 2/3 + 2. 2/5. ठीक है, 2/5 होगा, 3/5 होगा. नेक्स्ट. Hari purchased 10 sofas at rupees 10,000 per sofa. Hari purchased 10 sofas at 10,000 per sofa. टोटल कितना परचेज अमाउंट है? 10,000. 1 lakh. नेक्स्ट. Sorry, 1 lakh. He sent 2 sofas to Om for sale after spending rupees 1,000 per sofa on insurance and transportation. हाँ, he sent these sofas to Om indirectly. Hari is taking the purchase part, Om is looking after the sales part. You can understand from this line. Hari has done the purchases, now he is sending the sofas to Om. Om will sell the sofas. Understanding? Hari, while sending, he has incurred some expenditure on insurance and transportation. What is the amount? 1,000 per sofa. 1,000 per sofa. Can you tell me the total amount spent? 1 lakh 10,000 rupees.
Clear? Next. He drew a bill of rupees 50,000 on Om, हाँ. and this bill was discounted at a discount of rupees 5,000 after acceptance. Who draw the bill? Hari. On whom? Om. Om. So Om has to accept the bill. Who will make the payment of the bill? Om will make the payment of the bill. Hari will receive the payment of the bill. Yes or no? Hari is the drawer. Om is drawee. Clear till now? Next. Who has discounted the bill? The person who is holding the bill, he will discount. Who is holding the bill? Hari. Not Om. Om will accept the bill. He will accept the bill and he will give the bill to drawer. Who is drawer? Hari. Now Hari has the bill. What he is doing? He is discounting the bill with the bank. Understanding? Discount amount is 5,000. 5,000. Understood? Understood? Next. Om incurred further expenses of rupees 2,000 on these sofas before sale. These are Om's expenses. Understood? 10,000 is Hari's expenses. 2,000 is Om's expenses. Clear? Next. He sold all sofas at 15,000 per sofa, giving 5% commission to the dealer. Can you tell me the total sales amount? 50,000 per sofa. What is the total sales amount? Per sofa sale price is 15,000. How many sofas do you have? 10 sofas. 10 into 15,000, 1,50,000. 1,50,000 is the sales amount, yes? Now tell me the commission amount. Commission is 5%. 5% on 1,50,000. कितना है? 7,500. Very good. These are all the different figures. Okay? Understood with the question? Clear? सर बीच में बिल क्यों ड्रॉ किया था? You might be getting this doubt. Okay? But look here, Hari is purchasing the sofas. Understood? He might be in need of some money. So till the joint venture is completed, he cannot give the exact cash amount. Yes or no? So instead of that, he has given some bill, he has accepted one bill. So instead of cash or bank, he is accepting bill. So Hari is in some need of money. Understood? Joint venture start हो गया 1st of January 2024. समझ गया? सोच लीजिए ये बिजनेस खत्म होगा 30th June 2024. अंडरस्टूड? अभी हरी ने परचेज किया था 1st of January में, परचेज करके सोफास भेजा है. बीच में इसको जरूरत पड़ा है कुछ पैसा, है कि नहीं? तो सेल करेगा तो पैसा किसके पास आएगा? ओम के पास आएगा. अंडरस्टूड? सेल कब करेगा? बीच में कभी भी करेगा. तो सेल करेगा तो ओम के पास जाएगा पैसा. पैसा इसके पास तो नहीं है, अभी ये इन्वेस्ट करके बैठा है. समझ गया? अभी इसको बीच में अगर जरूरत पड़ा, एग्जाम्पल 30th अप्रैल में जरूरत पड़ा पैसा, तो क्या करेगा? ये थोड़ा सा इनसे मांगा है ओम से. ओम ने क्या किया? उसके पास भी पैसा नहीं है. वो क्या किया था? सेल करेगा तभी तो देगा. सेल कब करेगा? इस पीरियड में करेगा. तो अप्रैल में इसके पास भी नहीं है, तो क्या करेगा? ये एक्सेप्ट किया बिल को. अंडरस्टूड? Visualize this transaction. So normally this happens. So that's why he has drawn a bill, he has accepted a bill. You can assume almost this concept is similar to accommodation bill. Understood? Accommodation bill. Because you have this bill concept, utilize this, draw the bill. Hari, what he will do? He will go to the bank, discount it. Understood? Discount it, and then he will receive the amount.
discounting. Bill discounting is nothing but going to the bank, giving the bill, taking the amount. That is called discounting, na? Similar to check. Bills of exchange. We have discussed in the first chapter, na? Bills of exchange. Similar to check. You can assume some draft sort of thing, that he is going to the bank and he is encashing the bill, which is technically called discounting the bill. Okay? Technically it is called discounting the bill. Although in layman language we call it as encashing the bill. Understood? Now this discounting 5,000 rupees, this also has to be treated as joint venture expense. Why? Because of this joint venture only, he has invested some amount. Now he needs some money. So that's why he is discounting. That's why you should assume 5,000 also as joint venture expense. This is the whole concept. Understood na? Now dekho. Now what they are asking us to do? Read, Neelav. Prepare joint venture with home account in the books of Hari. Joint venture with home account. This is nothing but joint venture with co-venturer account, where you record only own transactions. Understood? Joint venture with home account in the books of Hari. Understood? Now in this account you have to record only Hari's transactions. Understanding? Yes. Next, what they're asking also show the memorandum joint venture account. Memorandum joint venture is nothing but account in which you record both the transactions, your own transactions plus other co-venturers transactions, which you receive via periodical statement. We have discussed this. Okay, both you will record in this account, and then you will find out the profit or loss from the joint venture. This is the target. Understood? Now first we will maintain joint venture with home account. ऊपर लिखो books of Hari. They asked us in the books of Hari only, not in the books of home. Okay? Joint venture with home account. I am mentioning again, in this account you record only own transactions. Clear? Next, what is the account? Memorandum joint venture account. In this you record all the transactions. क्लियर ना? मैं ऊपर स्टार मार्क लिखा है, देख लीजिए. जॉइंट वेंचर विथ होम अकाउंट, इसमें सिर्फ ओन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा. ओन मतलब कौन सर? हरी बुक्स है, तो हरी ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसमें ओन ट्रांजैक्शंस प्लस अदर को-वेंचर ट्रांजैक्शंस. इनडायरेक्टली all the transactions are recorded to find out the profit or loss from joint venture. Understood? Now we will go one by one. Profit sharing ratio 3:2. Hari purchased. हरी परचेज ना, तो हरी परचेज कर रहा है, तो ये परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है कि नहीं? एंट्री क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. परचेजेस की जगह में जॉइंट वेंचर ले लीजिए. जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इसमें टू बैंक अकाउंट कितना था? 1 लाख रुपीस. कैसे आया था सर? 10,000 रुपीस इंटू 10 सोफास. अंडरस्टूड? नाउ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में बोथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है ना, तो बोथ अकाउंट, बोथ मतलब ये हरी का भी रिकॉर्ड करना है. टू बैंक अकाउंट 1 लाख.
same 10,000 into 10 rupees. Clear? Here you record only one own transactions. Hari has spent the amount, so it will come in both the accounts. Understood? Yeah. Next, he sent those sofas to Om after spending 1,000 per on insurance and transportation. Same again. Insurance and transportation account debit to bank account. Insurance and transportation is a nominal account, so use joint venture account debit to bank account. Joint venture account में टू बैंक कितना था 10,000 1,000 per sofa ना 1,000 into 10 sofas 10,000 rupees. Clear? Here all transactions record होगा, हरी का भी होगा, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट again 10,000. Clear till now? Clear? Next, what is that? Draw a bill of 50,000 on Om. बिल ड्राइंग का एंट्री क्या था, कुछ डाउट है क्या? हाँ, बिल ड्राइंग का एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ओम अकाउंट. दिस इज द नॉर्मल एंट्री, है कि नहीं? इसमें कुछ जॉइंट वेंचर का नहीं होगा इसमें तो एक्चुअली, क्योंकि इधर कुछ एक्सपेंस नहीं हो रहा है, ये तो एसेट है. बाद में डिस्काउंटिंग जब होगा तब आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अंडरस्टूड? डिस्काउंट अकाउंट 5,000 है, बिल्स का अकाउंट 50,000 है, नेट अमाउंट आएगा 45,000. अंडरस्टूड? इस अमाउंट का कुछ एंट्री नहीं होगा, लेकिन इस अमाउंट का होगा, क्योंकि ये तो नॉमिनल अकाउंट है. ये अकाउंट ले लीजिए जॉइंट वेंचर अकाउंट, समझ गया? तो जॉइंट वेंचर टू बिल्स रिसीवेबल 5,000, इसका पोस्टिंग होना चाहिए जॉइंट वेंचर में. अंडरस्टैंडिंग ना? हाँ. अभी इधर देखो, टू बिल्स रिसीवेबल मैं लिख रहा हूं, ठीक है? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000 ब्रैकेट में डिस्काउंट, ठीक है? ये खुद का है ना डिस्काउंट एक्सपेंस, हरी ने डिस्काउंट किया है तो उसके बुक्स में डिस्काउंट अकाउंट आएगा, तो ये हरी के ट्रांजैक्शन है तो मेमोरेंडम में भी आ जाएगा. समझ गया? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट 5,000. Any doubts till now? Anyone from online students, if you have any doubts, you can stop me. Understood? Next क्या था एंट्री? ओम एक्सपेंसेस है 2,000 का. सर ओम एक्सपेंसेस है, इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये ओन ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड होगा, लेकिन जॉइंट वेंचर में आएगा. टू ओम अकाउंट कितना था? 2,000 पर सोफा है क्या? 2,000 टोटल है, ठीक है ना? वो 2,000 रुपीज टोटल है. 2,000 इंटू पर सोफा लेगा ना, पूरा आंसर बर्बाद हो जाएगा, दिकदार होगा. नेक्स्ट, ओम अकाउंट समझ गए ना? सर इधर क्यों नहीं लिया? क्योंकि इधर ओन ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करेगा, ओम जो ट्रांजैक्शन से वो इधर रिकॉर्ड नहीं होगा. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कमीशन. कमीशन पेड बाय whom? Read the line. Om incurred further expenses of 2,000 on these sofas before sale. He sold all the sofas at the rate 15,000 per sofa, giving 5% commission to the dealer. So who has paid the commission? Om. So Hari has not paid. So इधर नहीं होगा, इधर होगा.
टू ओम अकाउंट अगेन कमीशन ब्रैकेट में कितना है 7,500। इधर एक्सपेंसेस लिख देना 7,500। इधर एक्सपेंसेस लिख देना ऊपर 2,000 का, नीचे कमीशन। अमाउंट कितना था आज बोर्ड का बहुत इश्यू चल रहा है। अरे 7,500 7,500। एनी डाउट स्टिल नाउ? नहीं? इधर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेमेंट मेड बाय ओम। सब डन? डन ना? सेल्स का एक है, सेल्स का भूल गया, सेल्स का एक है। सर सेल्स कौन किया था? हाँ ओम किया है। इस ये बुक्स में नहीं आएगा, है कि नहीं? इधर आएगा बाई सेल्स। समझ गया? देखो बाई ओम अकाउंट, बिकॉज सेल्स मेड बाय ओम ना, तो ओम अकाउंट सेल्स ब्रैकेट में कितना 1,50,000। अंडरस्टैंडिंग? जॉइंट वेंचर में सब हो गया था। जॉइंट वेंचर में सब ट्रांजैक्शंस हो गया ना, सब रिकॉर्ड कर लिया हमने। अभी इधर प्रॉफिट और लॉस देखो फास्ट। 1,10,000, 5,000, 2,000, 7,500 क्रेडिट 1,50,000। हाँ क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा है? हाँ क्रेडिट 1,50,000 होगा, इधर 1,50,000 होगा। बैलेंस कितना है? कैलकुलेटर कहाँ है? तनुजा कैलकुलेटर कहाँ है? हाँ फॉरगॉट टू ब्रिंग। ओके 35 है 25 है, देख लेना अच्छे से। 25,500। हाँ वेरी गुड। 25,500 है। 1,50,000 माइनस 1,50,000 है, 40,000 इधर, 35,000 इधर, 33,000 इधर। 33,000 से 7,500 रिड्यूस करना है। 33,000 से 500 रिड्यूस करो, 32,500 है। 7,000 रिड्यूस करो, 22,500 है। 25,500 सॉरी, ठीक है। 25,500 किस रेशियो में बांटेगा? 3:2। 3:2 में बांटो। 25,500 इंटू 3/5, 25,500 इंटू 2/5। देख लेना कितना आ रहा है। 2 P&L अकाउंट, 2 ओम अकाउंट। सब P&L मतलब क्या है? खुद का प्रॉफिट है। खुद का कितना था? 15,300। 15,300। वेरी गुड। ओम का कितना है? 10,200। 10,200। जो बैलेंस बचा है उतना। समझ गए? अभी ओन प्रॉफिट का एंट्री ले लो। ओन प्रॉफिट का सर हाँ यहाँ पे जो बिल ड्रॉ किया है, हाँ हाँ
यहाँ पे जो बिल ड्रॉ किया है हरी ने उसका एंट्री हाँ, मैं उस पे आऊंगा। वो तो ड्यू डेट में है ना, ड्यू डेट में पेमेंट करना पड़ेगा ना बिल का, उस पे मैं एंट्री में आऊंगा। एक मिनट, आप कुछ बोल रहे? हाँ, लिखना पड़ेगा 25,500, उसके पहले अमाउंट को बांटना पड़ेगा, उसके पहले बांट दो। जो खुद का प्रॉफिट है वो पीएनएल में जाएगा, क्योंकि हरी का खुद का प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा। टू ओम अकाउंट है, वो ओम का प्रॉफिट है। समझ गया? अभी इधर एंट्री देखो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट है, वो ओन प्रॉफिट का। समझ गए? इधर ओन प्रॉफिट का इधर एंट्री भी लेना है। नथिंग बट जॉइंट वेंचर टू ये ना, तो ओन प्रॉफिट का भी देख लेना इधर। P&L शेयर ऑफ प्रॉफिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट कितना था? 15,300। समझ गया? दिस इज द ओन प्रॉफिट, वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ओन ट्रांजैक्शन सिमिलर टू ओन ट्रांजैक्शन ना। 15,300 क्लियर? क्लियर? अभी इधर जो देखो ओम अकाउंट, इधर ये जो बिल आया था 50,000, इधर मैंने बोलना भूल गया था 50,000। ये जो ट्रांजैक्शन है ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ओम अकाउंट, ये जो बिल आया था ना, बिल मेरे पास आया था ना, तो इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ओम अकाउंट। रिसीव कौन किया था? बिल रिसीव कौन किया था? हरी। तो हरी का ओन ट्रांजैक्शन है कि नहीं? समझ गया? ओन ट्रांजैक्शन है कि नहीं? है कि नहीं? ये जो ओन ट्रांजैक्शन है इसको लिखना भूल गया था पहले, देख लीजिए इधर बाई ओम अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में 50,000। बिल रिसीव्ड, दिस इज द एंट्री। This is the entry for bill received. This is the posting. Now balance this joint venture with home account also. कितना बैलेंस आ रहा है बताओ? बाई बैलेंस, दिस इज डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट ही ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे 1 लाख दिख रहा है, तो डेबिट ही ज्यादा होगा। तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कितना है? 80,300. This is nothing but what? This is nothing but what? Closing debit balance. Receivable. This amount is receivable indirectly from OM. Because who has received the sales? OM. Because sofas has been sold by OM na. तो सेल्स प्राइस रिसीव्ड बाय ओम, तो ये तो सिर्फ एक्सपेंडिचर किया था, तो इसको रिसीवेबल होगा। अंडरस्टूड? 80,300 इज रिसीवेबल। सर इसको दूसरा वे में भी कर सकते हैं सीधा, ये जो बैलेंसिंग फिगर है सर 1,50,000 जो है वो सेल वैल्यू है, समझ गए? 1,50,000 सेल्स वैल्यू है ओम का, मैं बोल रहा हूं ओम की एंगल से देखो। ओम ने सेल्स इतना किया था, माइनस 50,000 मुझे बिल दिया था ना, ड्यू डेट में 50,000 पे करना है, तो इसलिए 1,50,000 जो पैसा आया था
उनसे बिल का वैल्यू रिकवरी कर लेगा, ठीक है। उसके एक्सपेंसेस क्या क्या है, 2000 माइनस 7500 ये कमीशन है कि नहीं, माइनस उसका प्रॉफिट अमाउंट कितना था बोलो, प्रॉफिट देखो उसका ओम का 200, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो 80,000, ये जो 80,300 है, इसको दूसरा वे में भी निकाल सकते हैं सर, कैसे, उसका सेल्स उसके पास 1,50,000 आ गया सर, बाय हाउ, सेल्स, सोफास बेच दिया तो उसके पास इतना पैसा है, वो मुझे बिल एक्सेप्ट किया तो वो रिकवरी करेगा 50,000, ठीक है। एक्सपेंसेस है, ये जेब से पेमेंट किया वो, तो वो भी रिकवरी करेगा, और कमीशन पे किया वो भी रिकवरी करेगा, और उसका खुद का प्रॉफिट है, कितना आया था 10,300, कितना आ रहा है अभी 8300 आ रहा है ना, दिस इज द indirect way also to find 8300, understanding। एटी 300, इधर भी देखो कॉमन जो है उसको निकाल दो, 1 लाख कॉमन है, 10,000 कॉमन है, 5,000 कॉमन है, ठीक है। इसको इसको छोड़ देना, ये दो बचा है कि नहीं, ये दो बचा है, और ये बचा है 1,50,000 माइनस 2,000 माइनस 7,500 है कि नहीं, ये कॉमन नहीं है तो ये भी क्रेडिट में लेके आओ, 1,50,000, अंडरस्टैंडिंग ना, ये जो 1,50,000 है माइनस 2,000 जो मैंने बोला है, माइनस 7,500 माइनस 10,200, ये 15,300 कॉमन है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। और ये जो माइनस 50,000 है, सेम वही है, 1,50,000 माइनस 50,000 माइनस 50,000 माइनस 2,000 माइनस 7,500 माइनस 10,200, जो अनकॉमन है तो इनडायरेक्टली ये बन जाएगा, जो अनकॉमन है इधर सोच लीजिए 10 रुपीज, इधर 10 प्लस 20, जो अनकॉमन है ये 20 रुपीज इज द नेट अमाउंट, नेट इंपैक्ट, अंडरस्टूड ना। इसमें बहुत रिकॉर्डिंग होगा, इसमें सिर्फ उसका ही होगा, तो बैलेंस वही होगा, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट वेंचर। टुमारो आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, ओके। टिल नाउ वी आर डन विथ 25 मार्क्स, 75 मार्क्स और बचा है। टुमारो चैप्टर 3 which carries 20 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कल से अच्छा से मतलब सब लोग अच्छा से प्रैक्टिस भी करना है, होमवर्क बाकी सम्स होमवर्क में ले लीजिए जॉइंट वेंचर तक, और चैप्टर के लास्ट में बिट्स भी है, देख लेना बिट्स चैप्टर के लास्ट में, एकदम एक्सरसाइज है ना, पीछे पीछे इस तरफ, इस तरफ नहीं, इस तरफ, इस तरफ, ये जो है एक्सरसाइज बोल के है ना, वो सब एक बार कर लेना, ठीक है। In many exams I have seen exactly these exercise questions have been reproduced in the exam, हाँ दिया होगा ना, आपने देखा होगा, तो इसलिए जो भी बुक्स में क्वेश्चन है सब कर लेना, एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं है तो नंबर्स चेंज होगा, या बाद में जीरो ऐड होगा, जीरो लेस होगा, ऐसा ही देगा एग्जाम में क्वेश्चंस, तो ठीक है, एग्जैक्ट मॉडल दिख जाएगा तो आसान हो जाएगा एग्जाम में, क्लियर ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? नो सर। या थैंक यू।